ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمل اور میں ہوں رانی سیف اللہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بات کریں گے بڑھتی مہنگائی کی۔ ملک میں مہنگائی کے نئے طوفان نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ اشیاء خورنوش سمیت ضروری استعمال کی اشیاء پہنچ سے دور ہونے لگیں۔ عوام کہتے ہیں ابھی تو بجٹ کا اعلان ہوا ہے، مالی سال شروع نہیں ہوا اور مہنگائی کا یہ حال ہوا ہے، غریب کیسے جئیں گے؟ مالی سال ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے ہی ملک میں مہنگائی کے طوفان نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ آٹا، گھی، چینی، چاول اور دالوں سمیت ہر چیز کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ عوام کہتے ہیں ابھی تو بجٹ میں شامل ٹیکسز لاگو نہیں ہوئے، مگر مہنگائی نے بھرکس نکال دیا ہے۔ مہنگائی کا تو آپ اندازہ اس بات سے لگائے کہ جو سودا سلف، چونکہ ہم ملازمین ہیں، اپنا پہلی کے جو راشن وغیرہ ہم خود ہی لیتے ہیں، جو سودا ہم مطلب 6,000 میں جو ہمیں ملتا تھا، آپ یقین کریں 2 تاریخ کو جو میں نے سودا لیا وہ 15,000 روپے ہم نے لیا۔ ایک دن مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جو ہے نا تنخواہ داروں کے لیے جو ہے نا کوئی تنخواہ ان کا نہیں بڑھایا جا رہا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے ملازمین کے لیے بہت سے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کا جو ہے نا پرچون کا خرچہ، ان کا بچوں کا، ان کا اسکول اور ان کی یونیورسٹیز، باقی دیگر بہت سے ملازمین کرائے کے مکانات میں رہ رہے ہیں، تو بہت سارے مشکلات ہیں۔ ملازمین کو بھی ریلیف دینا چاہیے۔ اس دور میں ملازمین سخت، یہ مہنگائی کے دور میں سخت پریشانی کا شکار ہے۔ اشیاء خورنوش کے ساتھ ساتھ ضروری استعمال کی دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کون سی چیز کا رونا روئیں، یہاں تو ہر چیز کی قیمت ہی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ حکومت غریب عوام پر کچھ رحم کھائے۔ پاکستان میں جو یہ مہنگائی ہے وہ تو بڑھتی جا رہی ہے۔ برائے مہربانی ہمیں حکومت سے یہ اپیل ہے کہ مہنگائی میں کچھ نہ کچھ تو غریب عوام کے لیے ریلیف دی دیا جائے۔ مہنگائی تو بہت ہوا ہے، پیٹرول ڈیزل ہے اور آٹا ہے، چینی ہے، اس میں غریب کی بہت مشکلات ہوتے ہیں اور میڈیکل یہ سب چیزوں میں بہت غریب کہاں سے گزارا کرے۔ ملک میں غیر معمولی مہنگائی کو روکنے کے لیے حکومت کو ہنگامی طور پر اقدامات کرنا ہوں گے اور بازار میں قیمتوں کی نگرانی کے ذمہ دار اداروں کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ سبسڈی کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی 300 روپے کلو تک قیمت آ جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں آٹا 4 سال میں 35 روپے سے بڑھ کر 90 روپے تک چلا گیا تھا۔ اب یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا 40 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ وزیر اعظم کی جو سستا آٹا سکیم ہے اس کی کچھ تفصیلات پاکستان کی عوام کو بتانی تھیں، اور سستا آٹا سکیم کے بعد اب پورے ملک کے اندر سستا گھی سکیم شروع ہو چکی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت 2018 میں پاکستان میں آٹے کی قیمت جو تھی وہ 35 روپے کلو تھی، اور 35 روپے کلو کا آٹا پچھلے 4 سال میں 90 اور 100 روپے کلو تک گیا۔ حکومت کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی۔ شادمان یوٹیلیٹی سٹور میں کئی روز سے گھی نایاب ہے، دالیں، چینی اور دیگر اشیاء کی فراہمی کو بھی یقینی نہ بنایا جا سکا۔ شہری کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تفصیلات وحید گجر سے جان لیتے ہیں جو اس وقت شادمان یوٹیلیٹی سٹورز میں موجود ہیں۔ جی وحید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں انتظامیہ کی جانب سے غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے یوٹیلیٹی سٹور جو بنائے گئے ہیں وہاں پر اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں ہیں۔ ہم اس وقت شادمان یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہے۔ میرا کیمرہ مین محمد علی اگر آپ کو دکھائے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریک یہاں پر خالی پڑے ہیں، درجہ اول کا گھی یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، جبکہ چینی آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ تھوڑی سی چینی یہاں پر پڑی ہوئی ہے، جبکہ آٹے کے تھیلے جو ہیں وہ بھی بہت کم تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ دالیں یہاں پر نایاب ہیں اور یہ صورتحال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر سناٹے ہیں۔ شہری یہاں پر آ تو رہے ہیں مگر ان کو اپنے مطلوبہ سامان جو ہے یہاں سے نہیں مل رہا۔ ایک شہری جو یہاں پر آئے ہیں ہم ان سے مزید بات کر لیں گے۔ جی سر، کوئی چیز معیاری نہیں ہے، درجہ اول ہے، ایک آئل رکھا ہوا ہے، گھی بھی نہیں ہے، آئل ہے۔ جی بالکل یہ صورتحال ہے۔ شہری یہاں پر آ تو رہے ہیں اپنے ریلیف کے لیے، جو سبسڈی دی جاتی ہے کن چیزوں پہ۔ سبسڈی آپ کو بتاتا چلوں کہ چینی، آٹا، گھی اور دالوں پر دی جاتی ہے، وہ چیزیں یہاں پر دستیاب ہی نہیں ہیں۔ شہریوں کے اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ جب انتظامیہ کی جانب سے یہ یوٹیلیٹی سٹور جو لگائے گئے ہیں کہ غریب عوام کو ریلیف دیں، مگر یہاں پر ریلیف نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہری یہاں پر آ تو رہے ہیں مگر مایوسی کے سوا ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ جی
हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की दस्तयाबी के ऐलान के बावजूद कोयटा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और तेल नायाब है। आवाम को रिलीफ के नाम पर तकलीफें दी जा रही हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के बाद जो गरीब अफराद जो हैं उनका इन ऐसा यूटिलिटी स्टोर्स पे, लेकिन कोयटा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पे ना ही आटा और घी और तेल जो है वो दस्तयाब ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले जो शहरी है वो मायूस यहाँ से लौट रहे हैं। इस वक्त भी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते जानते क्या कहेंगे यूटिलिटी स्टोर्स पे ना आटा दस्तयाब है, ना तेल दस्तयाब है, ना घी दस्तयाब है। बिल्कुल इसी तरह है, ना आटा है ना घी है और बाकी जो है बाहर से बहुत महंगा होता है। जब हम यूटिलिटी स्टोर में आते हैं 2 दिन लगातार आता है, कोई चीज़ नहीं मिल जाता है। ये हुकूमत से हम लोग का दरख्वास्त है, गरीब आवाम क्या करेगा, कब तक इस तरह महंगाई और भी बढ़ जाता है। ये आपने सुना कि इनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पे ना ही तेल दस्तयाब है, ना ही घी दस्तयाब है और ना ही आटा दस्तयाब है। हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया है कि यूटिलिटी स्टोर पे आटा भी जो है सस्ते दामों में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है चीज़ें ही दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर भी जो गरीब आदमियों को जो रिलीफ है वो देने में नाकाम हो गया है। जी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुकूमत चीन से इमदाद मिलने का शोर डाल रही है। चीन से इमदाद पाक फौज की वजह से मिली है। हुकूमत को $1 देने को कोई भी तैयार नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, नून और शीन के हालात जल्द सामने आ जाएंगे। हुकूमत को बैसाखियों का सहारा है जो जल्द गिरने वाली है। बड़ा शोर डाल रहे हैं कि चीन से इमदाद मिल रही है। ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है और ये नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे। लाहौर और फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब होंगे और आवाम ने फैसला करना है। इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है जितनी देर इनको सहारा देंगे लोग, बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे और सारे लोग एक अक्सरियत मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। बदनसीबी से इनको बैसाखियों का सहारा है और ये बैसाखियाँ जो हैं कभी काम नहीं आई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत को मानना है। ये अपनी लूट मार के लिए अवाम को डिफॉल्ट कहकर डराते रहते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि खुदा न ख्वास्ता हमारी मौत हो जाएगी। वफाकी बजट में जिस तरह से हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत को माना है और बिल्कुल भी उन्होंने रेजिस्टेंस नहीं दी, कोई डिफॉल्ट होने का चांस नहीं है। ये सिर्फ इन लोगों की करप्शन है, लूटमार है, गुलामी है, जिसमें हर हुकूमत जाती है और इसका जो असर है वो आवाम के ऊपर पड़ता है। ये कोई खैरात नहीं है, ये आवाम का हक है कि बिजली में सब्सिडी मिलनी चाहिए, गैस में सब्सिडी मिलनी चाहिए। ये इन्होंने फैशन बना लिया है, इस कारपोरेट सेक्टर से चीज़ें चंद सीख लेते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं कि हुकूमत का काम सब्सिडी देना नहीं है। तो हुकूमत का काम अगर सब्सिडी देना नहीं है तो फिर आप क्यों हुकूमत कर रहे हैं? फिर निज़ाम मुमलिकत कैसे चलेगा? खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हंगामा खेज बजट इजलास आज होंगे। पंजाब का 3,226 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबे में तरक्याती बजट के लिए 685 अरब की खतीर रकम मुख्तस की गई है। 200 अरब रुपए सस्ते घी, चीनी और आटे की फराहमी पर खर्च किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का कुल तखमीना 1,332 अरब। KP बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 375 अरब रुपए रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा होगा। पंजाब के लिए नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 683 अरब 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक सूबाई बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन 5% इजाफे की तजवीज दी गई है। आइंदा माली साल के दौरान 200 अरब रुपए सस्ते घी, चीनी और आटे की फराहमी पर खर्च किए जाएंगे, जबकि कम आमदनी वाले अफराद को बिजली के बिलों में खुसूसी रियायत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आइंदा माली साल के लिए पेश होने वाले बजट का तखमीना 1332 अरब रुपए रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 418 अरब से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत 28 अरब से जायद रकम खर्च की जाएगी। कबायली इलाकों में 164 बुनियादी सेहत मराकज और 15 सिविल अस्पताल बहाल किए जाएंगे। बजट में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में बोन मीरो ट्रांसप्लांट सेंटर कायम करने के लिए भी फंड्स मुख्तस किए जाने की तजवीज़ भी शामिल है।
पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का नए साल का बजट पेश होने को तैयार है। पंजाब हुकूमत का माली साल बराए 2022 और 23 का तखमीना 3000 अरब रुपए से जायद का होगा, जबकि आमदन का तखमीना 2521 अरब रुपए लगाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी से। जी अब्बास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जैसे कि 2 बजे पंजाब असम्बली में पंजाब का बजट जो है वो पेश करने जा रहा है और इस वक्त जो है सूबाई काबीना का इजलास जो है 90 इशारा पर वज़ीर आला पंजाब जो है अहमद शहबाज उनकी ज़ेर सदारत जारी है और इसके अंदर सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है बजट के तखमीने के हवाले से। और इस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल और सेक्रेटरीज़ और दीगर जो महकमों के सेक्रेटरीज़ हैं वो इस वक्त इजलास में मौजूद हैं, जबकि दीगर सूबाई वज़रा जो हैं वो भी इजलास में उन्होंने शिरकत की हुई है और इस वक्त इजलास जो है वहाँ पर जारी है। 2 बजे इजलास का टाइम रखा गया है। तक 3000 से ज़ायद का अरब जो है आज पंजाब हुकूमत जो वो पेश करने जा रही है, जिसमें जो अहम बात यह है कि तरक्याती अखराजात के लिए 679 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ साथ सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा और पेंशन में जो है 5% इजाफा किया जाएगा, जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि आमदन का तखमीना 2521 अरब रुपए लगाया जा रहा है और वफाकी महासिल से 2020 अरब रुपए हासिल होने की तवक्का है। अहम बात यह है कि आज जो है पंजाब असम्बली के अंदर जो तहरीक इंसाफ है वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, लेकिन अभी तक अपोजिशन लीडर जो है वो तैनात नहीं किया गया। और गुज़िश्ता रोज़ भी जब चौधरी परवेज़ लाई की ज़ेर सदारत यहाँ पर इजलास हुआ था और तहरीक इंसाफ के दीगर क़यादत भी यहाँ पर मौजूद थी, तो अहम बात यह है कि ना तो अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ की जानिब से फाइनल हुआ है नाम उसका और ना ही डिप्टी अपोजिशन की जानिब से। तो अब देखना यह है कि पंजाब असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ हुकूमत को पंजाब असम्बली का बजट पेश करने के हवाले से क्या कोई टफ टाइम देने में कामयाब होती है या नहीं होती। लेकिन हमदा शहबाज से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने वादे तौर पे कहा है कि ये जो बजट पेश किया जा रहा है ये आवाम की उम्मीदों के मुताबिक पेश किया जा रहा है और कोई भी नया टैक्स जो है वो इस बजट के अंदर नहीं लगाया जाएगा। जी, कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब्बास नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। आम आवाम की तरह पेशावर के ताजरों ने भी सूबाई बजट से तवक्कुआत लगा ली। ताजरों की क्या तवक्कुआत हैं, जान लेते हैं नवाब शेर से। जी बिल्कुल, नवाब शेर इस वक्त ताजर रहनुमा के साथ मौजूद हैं। नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जा रहा है और ज़राए के मुताबिक बजट का हजम जो है वो 1332 अरब रुपए रखा गया है। मेरे साथ कुछ ताजर रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका सूबाई बजट से क्या तवक्कुआत है। जी बताइए, सूबाई बजट से क्या? जी, कुछ रोज़ पहले जो वफाकी बजट पेश हुआ है उसमें छोटे ताजरों के लिए किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, जिससे हम मायूस हैं। रही सूबाई बजट की, तो उम्मीद करते हैं कि सूबाई बजट जो आज पेश किया जा रहा है उसमें कम से कम छोटे ताजरों के लिए कोई ना कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाएगा। छोटा ताजर अगर फ़ायदा लेगा तो ये इंडस्ट्री भी चलेगी। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है आज सूबाई बजट में कि वो छोटे ताजरों के लिए कोई खसूसी पैकेज ज़रूर ऐलान करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ताजरों का यही कहना है कि आज जो सूबाई बजट पेश किया जा रहा है उनको उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो छोटे ताजर है उनके लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि वो अपना कारोबार भी बढ़ा सके और मुल्क की तरक्की में जो है वो अपना हिस्सा भी डाल सके। जी, जायदाद के तनाज़े पर एक और घर उजड़ गया। लाहौर के इलाके शादरा अजीज पार्क सगिया रोड पर जायदाद के तनाज़े पर भाई ने भाई और भाभी को ही कत्ल कर दिया। मुल्जिम तनवीर और मक्तूलैन फजल इलाही और फौजिया के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिस पर मुल्जिम फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। कराची में लूटमार की अनोखी वारदात, नौसरबाजों ने मुबैना तौर पर नशावर मशरूब पिलाकर मजदूरों को लूट लिया। वाक़या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नज़दीक गोदामों में काम करने वाले मजदूरों के साथ पेश आया। शरबत रात गए खाने के बाद पिलाया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वजीउद्दीन से। वजी, पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर सकी है इस केस में? बिल्कुल, पुलिस ने जो है यहाँ से एक शख्स को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया गया है। ये बताया गया है कि रात गए जो यहाँ पे एक नौसरबाज शख्स आया था जिसने उन्हीं के साथियों में से किसी को शरबत दिया और उसके बाद जो वो शरबत उन्होंने जो है रात के खाने के बाद पिया। और जब सुबह यहाँ पे जो दीगर उनके साथी गोदाम के पहुँचे मजदूर, तो उन्होंने देखा कि ऊपर जो है तमाम तकरीबन 22 अफराद बताए जाते हैं कि वो जो है बेहोश हुए हुए थे। तब हमारी उनसे बात, उनका कहना है कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 11 बजे के दरमियान जो है वो शख्स जो
यहाँ पे आया था। और उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो जितने भी मजदूर थे यहाँ पे उनकी जेबों से जो है सामान भी जो है गायब हो चुका है। उनके मोबाइल फ़ोन और दीगर जो नकदी है और दीगर सामान जो है वो भी उनकी जेबों से गायब है। पुलिस ने यहाँ पे पहुँचकर जो एक शख्स को जो है हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि उस शख्स को जो है नौसरबाज ने आके यहाँ पे शरबत दिया था। ताहम पुलिस का कहना है कि वाक़े से मुतालिक मज़ीद भी जो है पूछगछ यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ गोदाम है और यहाँ पे हम देखेंगे जो गोदामों के ऊपर ही जो है जो मज़दूर है यहाँ पे रिहाइश इन्होंने जो है इख्तियार की हुई थी। ताहम जब सुबह यहाँ पे दीगर मजदूर पहुँचे तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो है लिफ्टर की मदद से जो मजदूरों को नीचे उतार कर जो है एम्बुलेंस के जरिए जो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सिविल अस्पताल में बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जाती है। जी ठीक है, जो 22 मजदूर हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है। वजीहुद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया। डीजी SBC इसहाक खोड़ो की हिदायत पर शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बादशाह खान चौक पर नाले पर कायम 1 दर्जन से ज्यादा इमारतें मिसमार की जा रही हैं। ऑपरेशन में SBCA के एहलकारों के अलावा डिप्टी कमिश्नर और पुलिस की नफरी भी मौजूद है। इस्लामाबाद में PTI के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमे में अदालत ने शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरी मजारी और जरताज गुल समेत 38 मुलजिमान की अबूरी जमानत में 20 जून तक तौसी कर दी। इस्लामाबाद में PTI के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मामले पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, जिस पर प्रोसिक्यूटर वाजिद मुनीर ने बताया कि अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि कितने लोग हैं जो अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि बहुत सारे बयान हैं लेकिन बहुत सारों ने तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। बाबर अमान एडवोकेट ने कहा कि हमारे रहनुमा थानों में गए लेकिन जवाब मिला साहिब मौजूद नहीं हैं। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को कमरा अदालत में ही सबको शामिल तफ्तीश करने की हिदायत कर दी। इस मौके पर शीरी मिजारी ने अदालत से कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं शामिल तफ्तीश हो चुकी हूँ और आज ही मेरे वकील बहस करेंगे, जिस पर अदालत के जज ने कहा हमने मंगल की तारीख रख ली, उस दिन बहस कर लेंगे। दौरान समाअत शीरी मिजारी, जरताज गुल और इमरान इस्माइल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की गयी। अदालत ने 38 मुलजमान की 20 जून तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए केस की समाअत 20 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। मुल्क भर में गर्मी की लहर के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है। बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनियों की रिवायती बेहिसी भी पूरी ढिठाई से जारी है। मुल्क भर के अवाम घंटों बिजली से महरूम, जीना अजाब हो गया। में बिजली का शॉर्टफॉल आज 5673 मेगावाट है। बिजली की मजमूई पैदावार 22,253 मेगावाट जबकि तलब 27,926 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 24 घंटे तक पहुँच गया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से ज्यादा हो गया। दिन का चैन और रात का सुकून खत्म होने पर शहरियों ने शहबाज हुकूमत को खरी खरी सुना दी। दिन ब दिन लोड शेडिंग ज्यादा हो रही और पहले जब हुकूमत होती थी तो इतना लोड शेडिंग नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इस तरह काम है ना, बिजली तो बिल्कुल नहीं होता है ना रात को होता है ना दिन को होता है। बिजली की लोड शेडिंग है अभी आप लोगों के सामने, अभी भी बिजली नहीं है। आता है 2-3 घंटे और फिर 24 घंटे में बस यही 2-3 घंटे बिजली होता है, फिर नहीं आता है। कराची में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी तबका खासा मुतासिर नजर आता है। फोटोकॉपी का कारोबार करने वालों का कहना है कि लाइट जाने पर जनरेटर से कोई बचत नहीं होती। इंतजामिया गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाए। तो साडे बच्चे निके निके जेडे ने परेशान है ने, असी चाहते हैं कि लाइट जरा जरूर आवे। बहुत ज्यादा परेशान है, 3-3 घंटे लाइट नहीं आती ते सब परेशान है, सारा मोहल्ला परेशान है। पेशावर वालों को बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से निजात ना मिल सकी। गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। अंदरूनी शहर 10 से 12 घंटे और देहात में 12 से 16 घंटे बिजली गायब है। कोयटा में दर्जा हरारत क्या बढ़ा, लोड शेडिंग के दौरान ये में मजीद 2 घंटे का इजाफा कर दिया गया। शहर में 10 से 12 घंटे जबकि दूर दराज के इलाकों में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है।
शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कौमी एयरलाइन ने आज तैयारा भेजने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तानी सफीर ने पाकिस्तानियों की वापसी के लिए परवाज़ हल्ब भेजने का कहा है। पहले मरहले में दमिश्क से पाकिस्तानियों को बज़रिया बस हल्ब मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से उन्हें पाकिस्तान पहुँचाया जाएगा। शाम से तमाम ज़ायरीन 24 घंटों में पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। वजारत हवाबाजी की जानिब से कहा गया है कि PIA एक कौमी इदारा है और हमेशा ऐसे मौके पर अपनी खिदमात मुल्क के लिए पेश करता है। 2 रोज़ कबल इजराइल बमबारी की वजह से दमिश्क के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट का रनवे जुज़वी तौर पर तबाह हो गया था। अवाम को बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹3.99 फी यूनिट महंगी कर दी। अप्रैल की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा ने महफूज फैसला जारी कर दिया। CPPA ने बिजली ₹4.05 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 31 मई 2022 को FCA पर अवामी समाअत की थी। इसी पर बात करते हैं सौलेह अब्बासी से। जी सौलेह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹3.99 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में नेपरा का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जिसके मुताबिक अप्रैल की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का फैसला जारी किया गया है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹4.05 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी, जिस पर नेपरा अथॉरिटी ने 31 मई को समाअत की और जांच पड़ताल के बाद ₹3.99 की इजाफे की मंजूरी दी थी, जिसके बाद नेपरा ने फैसला ये महफूज कर लिया था और आज ये महफूज जो फैसला है ये जारी कर दिया गया है और ₹3.99 फी यूनिट बिजली जो है वो अप्रैल की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में महंगी कर दी गई है। ये जो इजाफा है ये कि इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम जो डिस्कोज के सारिफिन हैं उन पर नाफिजुल अमल होगा। इसके अलावा जो लाइफ लाइन कस्टमर यानी जो माहाना 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स हैं वो भी इस फैसले से उनको भी इस्तिस्ना हासिल होगा। उसके अलावा दीगर जितनी भी डिस्कोज के सारिफिन हैं उनके लिए ये एक बिजली का जोरदार झटका उनको लगा दिया गया है और ₹3.99 फी यूनिट जो है बिजली महंगी कर दी गई है। जी सौलेह अब्बासी, आपने अपडेट किया है, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। भारत चाहे कुछ भी कर ले, कश्मीरियों के जज्बे को कभी कम नहीं कर सकेगा। बहादुर माओं के बहादुर बेटों में ही इतनी हिम्मत होती है कि वो जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों। ऐसी ही एक बहादुर मां ने जालिम भारतीय सरकार को यह पैगाम दिया कि अपने 16 साला बेटे की शहादत के बावजूद भी उन्हें कोई डर, कोई दुख नहीं है। बहादुर खातून ने यह सवाल भी किया कि पुलिस को ये इजाजत किसने दी कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों पर गोलियां बरसा दे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद बोल देने पे पुलिस को हक है गोली मार दे, हक है गोली मार दे। किसने उसे हक दिया? सरकार कहाँ सोई है अभी? कहाँ सरकार सोई है? सरकार क्यों सोई है अभी? क्यों नहीं आवाज उठा रही है सरकार? इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद कल भी रहेगा। इसे सरकार या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। कितने साल का था? नहीं रोक सकती। मेरा 16 साल का बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फख्र है। खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान ने सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में वेस्ट इंडीज को बासानी 53 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। इमामुल हक को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ओपनर फखर जमान और इमामुल हक ने टीम के लिए अच्छा आगाज फराहम किया। दोनों ने पहली विकेट पर 85 रन जोड़े। फखर जमान 35 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम सिर्फ 1 रन बना सके। इनके बाद मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस भी ज्यादा देर पर विकेट पर न ठहर सके। 117 के स्कोर पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। ऐसे में पहले खुशदिल शाह ने 34 रन के साथ और फिर टेल एंडर्स ने शादाब खान का साथ दिया। शादाब ने 69 गेंदों पर 86 रन की यादगार इनिंग्स खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। And there's his 50.
goes full and Shadab makes him pay. Shot and thumped. That made a great sound off the bat. कौमी क्रिकेट टीम ने मुकर्ररा 48 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 269 रन बनाए। 270 रन के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 216 रन पर ऑल आउट हो गई। शादाब खान को ऑल राउंडर परफॉर्मेंस पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी जबकि इमामुल हक को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।